everybody, welcome and thanks for joining again. I hope कि last two readings से आप लोगों को काफ़ी insight मिला होगा. जो आप लोगों का the most requested reading था what about Ankita, of course, and how Sushant is seeing Ankita from the angelic realm. तो काफ़ी deep insight था. I hope you guys have got a great insight into it, clarity into understanding Ankita. ठीक है. ये वाला guidance है. Is there any guidance, blessings, anything that Sushant wants to say to Ankita? Okay. Why am I doing this? Is because this was the first Karwa Chauth when he is not here, and they were not able to, I guess, even talk in their last time. Uh, I feel that there is nothing wrong in asking this. Is there anything that Sushant wants to tell Ankita? Because they are so much loved and there was so much of love within उनके बीच में काफ़ी प्यार था. लोग भी उनको इतना प्यार करते हैं, तो मुझे कहीं कुछ गलत नहीं लगता है टू एक्सप्लोर दिस कि इफ़ देयर इज़ एनी मैसेज दैट सुशांत वांट्स टू गिव अंकिता. ठीक है. Yes, I understand that we should let Ankita be with her guy, but we are not interfering in Ankita and Vicky's life or investigating anything between them. And this is we are doing Sushant and we are doing Sushant and Ankita's reading. So in that context, I think it makes sense to do this. तो ये वाला reading यही होगा. ठीक है. तो let's see if Sushant has anything अंकिता के लिए. ठीक है. All right. So dear angels, please tell us anything, there is anything that Sushant wants to tell Ankita on this Karwa Chauth, or even as his last word to Ankita. Anything that Sushant wants to tell Ankita on this Karwa Chauth, or even as the last word that he wants to tell Ankita. All right. Oh my God. The star card. He is wishing her stars, right? He's telling her that look forward to all your dreams will come true. You know, this is such a beautiful and such a powerful card to get from a equally angelic person, जो कि इतना सबके लिए अच्छा चाहता था. वो उसका wish, उसका what does he wants to tell Ankita? He wants to wish her the world. The star is a wish fulfillment का card होता है importantly. He wants to wish her stars in her life. He wants to wish that everything that she wishes comes true. मैं इसको बाद में explain करूँगी अच्छे से. Oh my God! Amazing, 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 amazing. Wow, this is gorgeous, guys. I think you can feel the vibes, huh? You can feel the vibes. I think Sushant wants to tell this. बिकॉज इम्पॉर्टेंटली कुछ दिन के बाद कोई भी इस चीज़ पे बात नहीं करेगा. सब भूल जाएंगे, बिजी हो जाएंगे अपने लाइफ में. अंकिता भी बिजी हो जाएगी लाइफ में. एंड दैट इज़ वाई आई वॉज फीलिंग ड्रॉन टू डू दिस रीडिंग. मुझे लगा कि देर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू कम आउट. देर इज़ इन्फॉर्मेशन दैट वॉन्ट्स टू कम आउट. एंड यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली एक स्टार का कार्ड आया है. और स्टार का कार्ड किस लिए आया है? यहाँ पे सुशांत अंकिता को कुछ विश कर रहे हैं. एक स्टार विश कर रहे हैं. स्टार इज ऑल अबाउट विशिंग. व्हेन अ स्टार फॉल्स यू मेक अ विश, and when you see the starry night you make a wish, you become dreamy. It is all about dreams and make wishes coming true. यहाँ पे भी सुशांत को जो विश है अंकिता के लिए वही है कि he wants all her wishes to come true related to her family. Sushant is wishing her a very happy family with her beau, with kids, and all the happiness in the world where she has to worry about nothing. Yes, देखिए ये क्या wish वो सुशांत wish कर रहे हैं अंकिता के लिए. Beautiful. Wow, Knight of Wands in opposite direction. This is Sushant. This is Sushant.
यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाला कार्ड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। और यहाँ पे सुशांत इज हियर विद ए, और सुशांत हमेशा आपको पता ही है कि वो नाइट ऑफ वॉन्स रहते हैं। यहाँ पे वो नेगेटिव अवतार में है। अगर आपको पहले वाली रीडिंग याद है, तो जब उनका ब्रेकअप हुआ था अंकिता के साथ, व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग कृति सैनन, और शी मेड एन एंट्री इन हिज लाइफ एंड दे गॉट बिजी, तो उस समय उनकी जो एनर्जी थी, नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स ऑर्डर था जब वो बॉलीवुड में तुरंत स्टार्ट किए थे। तो अपने उस फेज़ को वो याद कर रहे हैं। याद रखिए, मैंने पूछा है, इज़ देयर एनी मैसेज दैट सुशांत वांट्स टू गिव अंकिता ऑन दिस करवा चौथ, और इवन एज द लास्ट थिंग दैट ही वांट्स टू टेल हर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर उनकी शादी हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट कीप ऑन डूइंग कि इट विल बी अ न्यू चैप्टर, अ न्यू लाइफ फॉर ऑल टुगेदर। तो उस समय हम आके नहीं पूछ सकते हैं कि इस करवा चौथ में भी सुशांत अंकिता के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बताओ, क्योंकि इट्स नो पॉइंट डूइंग दैट। दिस इज़ द लास्ट करवा चौथ जहाँ पे वो अभी शादी उनकी नहीं हुई है उस उनके बॉयफ्रेंड के साथ, फियांसे के साथ, जो भी हैं वो, और सुशांत भी नहीं है। तो इट मेक सेंस कि आप यहाँ पे तो पूछ सकते हो, बट कमिंग गोइंग फॉरवर्ड वी कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। तो ये एक लास्ट मैसेज है सुशांत का अंकिता के लिए ऑन दिस लास्ट करवा चौथ, जो कि यहाँ पे उन्होंने क्या मैसेज किया है कि आई विश कि तुम्हारी सारी जो ड्रीम्स है एक हैप्पी फैमिली का, वो तुम्हारा पूरा हो, तुम्हारे बच्चे हों, यू बी हैप्पी विथ योर गाय, और तुम्हारे दुनिया भर की तुम्हें खुशी मिले, तुम्हें इमोशनल कंटेंटमेंट मिले, तुम्हें हैप्पीनेस मिले, तुम्हारे लाइफ में हमेशा एक रेनबो रहे जहाँ पे तुमको हैप्पीनेस मिलता रहे। ये वो सुशांत ने अंकिता के लिए विश किया है, और ये अपने फेस को भी याद कर रहे हैं। देखिए, बहुत ब्यूटीफुल है, अंडरस्टैंड करिए। एक आदमी जिसने, आई मीन यू नो, ही इज़ इन द एंजेलिक रेल्म, बट देयर लव वाज वेरी डिवाइन, दैट इज़ वाई पीपल सपोर्ट इट एंड लव इट सो मच। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्यार मैंने शाहरुख खान और काजोल के लिए भी नहीं देखा है, उतना क्रेज़ जितना मैं इन दोनों के लिए क्रेज़ देखती हूँ। तो वो अपने उस फेज़ को याद कर रहे हैं जब वो, आप याद रखना कि ये वाला कार्ड्स भी आया था, बिल्कुल इसी तरह का कार्ड आया था, 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था। वो रीडिंग मैं कनेक्ट कर दूंगी, आप देखना कि वो अपने इतने एरोगेंट हो गए थे, अपने उनकी स्कैटर्ड एनर्जी इतनी हो गई थी कि उनका बैलेंस बिगड़ गया था, और सेलिब्रेशन कर रहे थे, एक न्यू लाइफ उनकी स्टार्ट हुई थी बॉलीवुड में। और काफ़ी यहाँ पे लोगों ने उनको भरमाया भी था, उनको बहकाया भी था, उनका ब्रेन वॉश भी किया था। अंकिता को भी काफ़ी उन लोगों ने ये किया था। एक न्यू लाइफ देखिए स्टार्ट हो रही है उनकी। एक ये वाला अभी एस ऑफ पेंटिकल्स का फेज उनका स्टार्ट हुआ था बॉलीवुड में। ये उस सारी चीज़ें को याद भी कर रहे हैं। ओके, सो ही इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग बैक इन टाइम्स फ्रॉम वेयर द थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग, द टाइम व्हेन द रिलेशनशिप टुक अ रॉन्ग टर्न, द रिलेशनशिप टुक द रॉन्ग टर्न। तो डेफिनेटली जब आप लास्ट चीज़ किसी के बारे में आप अगर बात करना चाहते हो, तो आप, और अगर रिलेशनशिप टूट गया है, नहीं है, the person is also not there and this is the last thing that the person wants to tell you, तो आप वो समय याद करना चाहोगे जब से वो रिलेशनशिप या तो आपने स्टार्ट की थी, या फिर जब से वो रिलेशनशिप एक रॉन्ग टर्न लिया था। तो वो रॉन्ग टर्न याद कर रहे हैं जब उनकी बॉलीवुड में स्टार्टिंग हुई थी, और कैसे काफ़ी लोगों ने उनको कंफ्यूज किया था। अंकिता को भी काफ़ी किया था, याद रखिएगा। वो हम द बैक स्टैबर का बात कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगी भी। काफ़ी लोगों ने उनको कंफ्यूज किया था, मैनिपुलेट किया था, अंकिता को काफ़ी एक इनसिक्योर किया था कि दिस गाय इज़ नॉट फॉर यू एंड ऑल दोज थिंग्स। और सुशांत ने एक अपना न्यू फेज स्टार्ट किया था बॉलीवुड में, जो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था, काफ़ी सेलिब्रेशंस हो रहा था। ही वॉज ऑन द हाई हॉर्स, सक्सेस, मनी, स्टारडम, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, हर चीज़ बोला जा रहा था। ओके, एवरीथिंग वॉज डूइंग गुड। हाउएवर वो इस सारी चीज़ में कैरी हो गए थे, ऐसा है ना। तो वो बैलेंस थोड़ा उनका बिगड़ गया था। और यहाँ वाला कार्ड देखिए, ये वाला कार्ड बिल्कुल उस समय आया था जब उनका रिलेशनशिप अंकिता से बिगड़ने लगा था। तो ही यूज टू नॉट फील वेरी प्राउड गोइंग विथ हर, इस तरह की बातें मैंने उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि ही वॉज मोर लिटिल फोकस्ड ऑन हिज करियर, एंड अंकिता के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता था, एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ से था। एक स्कैटर्ड एनर्जी है, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हॉर्स है। ही इज़ ऑन हिज हाई हॉर्स विथ अ वेरी स्कैटर्ड एनर्जी, गेटिंग ब्रेन वॉश्ड बाय पीपल, नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर रियल इंटेंशन, बट बिकॉज ही वॉज मोस्टली फोकस ऑन हिज करियर दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो चीज़ वो याद कर रहे हैं एज ही इज़ विशिंग ऑल द लव, हैप्पीनेस, अबंडेंस
emotional satisfaction for Ankita in her life. This is very beautiful. This is absolutely gorgeous. यहाँ पे देखिए एक ये थिंकिंग मैन आ गया है और यहाँ पे वो ये भी चीज़ याद कर रहे हैं कि ये वाला रीडिंग आप याद करो, आपको उस सैंडी के रीडिंग में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये थिंकिंग मैन था. दिस वाज द गाय हु हैज़ मैनिपुलेटेड बिग टाइम. तो ये उस बंदे को भी याद कर रहे हैं कि कैसे इस बंदे ने यहाँ पे, ये वो थिंकिंग मैन नहीं है, वो बिग ब्रदर वाला या बिग बॉस वाला थिंकिंग मैन नहीं है, ये कोई और थिंकिंग मैन है. ही इज़ द बैक स्टैबर. ये उस बंदे को याद कर रहे हैं कि कैसे इसने, ये वाला भी कार्ड उस समय आया था कि कैसे इसने तिकड़म लगा के इनको पूरा मैनिपुलेट किया था इनके रिलेशनशिप को. तो वो भी चीज़ याद कर रहे हैं वो. ठीक है, यहाँ पे देखो कि कैसे यहाँ पे आया था वो वाला कार्ड. तो ये बंदे ने इन दोनों को ही मैनिपुलेट किया है, तो वो चीज़ भी याद कर रहे हैं वो. और यहाँ पे एक किंग ऑफ कप्स आया है जो कि अपोजिट अवतार में है. अब ये मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली ये अंकिता का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, ही इज़ द फियांसी, हिज हर फियांसी. तो यहाँ पे वो उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कॉन्शियस लेवल में है वो. बट यहाँ पे अगर आप देखो तो वो बता रहे हैं कि he is wishing all the happiness to her, her dreams coming true. और यहाँ पे this guy is her fiancé and this is the happy life, जो कि अभी तो दोनों ही उल्टे अवतार में हैं. दोनों में ही एक you know, her happy life, family life is not something that she is able to imagine or something like that. यहाँ पे है ऐसा एग्जैक्टली. तो अभी जो अंकिता को डिफ़िकल्टी हो रहा है ना, हैंग्ड मैन के पोजीशन में है, शी इज़ नॉट एबल टू बी दैट प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेक हर रिलेशनशिप विद द किंग ऑफ कप्स इन अ वेरी स्टेडी मैनर और द वे दे वर गोइंग अर्लियर बिफोर सुशांत के डेथ के पहले. तो अभी दोनों में ही सामंजस्य नहीं है, आप बोलो तो एक बैलेंस नहीं है. बैलेंस, अलाइनमेंट उनके ख़त्म हो गया है. सुशांत के जाने के बाद अंकिता का जो इस बंदे से रिलेशनशिप था और यहाँ पर जिस तरह का एक केमिस्ट्री था, वो थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ गया है. तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ लिटिल जर्नी अहेड. तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा जर्नी अहेड होगा. यू आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू वरी. यहाँ पे देखिए वही कार्ड है जो अंकिता का पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था, जो कि she is being trying to be herself. She's trying to be herself in a very unapologetic way. ठीक है, तो वो भी ये चीज़ देख रहे हैं. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इट्स मोर लाइक यहाँ पे वो काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी. यहाँ पे वाला, ये वाला कार्ड यहाँ पे आया था कल की रीडिंग में, देखो तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यू डोंट हैव टू इंट्रोस्पेक्ट सो मच. यहाँ पे उनके एटीट्यूड में आ गया है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक सुशांत इज टेलिंग अंकिता दैट यू डोंट हैव टू think so much about your relationship. Yes, I know that your relationship is not working as you had planned to work. Okay, तुमने बहुत ही प्यार से ये अपना, you had moved ahead in your life, you had chosen the guy and you were happy in your life. I know that because of me everything went berserk and you are presently not in alignment with your king of cups. Okay, fine, but you don't have to worry. You don't have to be so worried about it. You are doing good. You are taking the baby steps. You are doing good. There is going to be a little journey here. यहाँ पे थोड़ा ups and downs होगा. You will take time to adjust and everything, but slowly your chariot will move forward and you will be able to realize your worth. Okay, you are going in the right direction. You will be able to realize your worth. You will come out guns blazing in your own avatar and don't be scared of people judging you. यहाँ पे देखिए अभी भी वो दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे भी वो उल्टे अवतार में है, यानी कि शी इज स्टिल नॉट एबल टू शी बीट्स हर सेल्फ अप. इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि शी इज़ नॉट दैट, जैसा उसको हमेशा सेल्फ लव से स्ट्रगल करती थी, वो भी सुशांत उसको वहाँ से देख रहे हैं कि यू स्ट्रगल विद सेल्फ लव, यू स्ट्रगल टू बी योर सेल्फ, यू आर स्टिल feel that people judge you and all kind of things, but you are taking baby steps to boldness. Wand का कार्ड है, Pentacles का कार्ड है. You are taking baby steps to being bold and in the due course of time you will be fine. Okay, यहाँ पे आगे में कार्ड देखते हैं क्या है. वाओ, सन का कार्ड है गाइस. ओके, तो ये यही बोल रहे हैं कि
एवरीथिंग इज गोना बी फाइन इन योर लाइफ, ठीक है। तो अभी आप देख ही रहे हो, जैसे मैंने भी बोला कल के रीडिंग में, कि शी इज टेकिंग बेबी स्टेप्स ऑफ सेल्फ केयर टू मूव टूवर्ड्स सेल्फ लव, वेयर शी डजंट वांट्स टू फील apologetic about being herself, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। तो यहाँ पे जो लोग हम जज करते हैं, जो लोग जज कर रहे हैं अंकिता को, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे यस, शी इज़ स्टिल नॉट दैट बैड एस, वो स्टिल स्ट्रगल कर रही है, नो मैटर हाउ, कितना भी वो दिखा दे सोशल मीडिया पे ऑल दोज थिंग्स, लेकिन शी इज़ स्टिल विद इन स्ट्रगलिंग हर सेल्फ टू बी दिस लेडी। बट येस, वो अपने शी इज़ वर्किंग ऑन हर थिंग्स एंड सून शी विल बी देयर इन द सनी डेज, जहाँ पे सन भी उसके लाइफ में शाइन करेगा और रेनबो भी उसके रिलेशनशिप पे शाइन करेगा। शी विल बी हैप्पी डैपी, ओके गाइज। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ आपको, जो लोग जज कर रहे हैं अंकिता को, दैट वाई इज शी पुटिंग दैट काइंड ऑफ फोटोज़। दिवाली पे भी शायद उसने कुछ वीडियोज़ डाला है और कुछ डाला है। तो मैं यहाँ पे ये बात देखो आप, कि जब अभी के सिचुएशन में जहाँ पे सारे लोग, यहाँ तक कि रिया से लेके इवन बॉलीवुड इज स्केयर्ड ऑफ द मासेस ऑफ पब्लिक, और वो यहाँ तक कि आई हैव 83 मूवी भी पोस्टपोन उन्होंने कर दी है, क्योंकि डर बैठ गया, उनको डर बैठ गया है फॉर द फर्स्ट टाइम बॉलीवुड को, कि जनता पागल हो गई है, दे आर इन रेज एंड दे कैन जस्ट स्मैश एनीथिंग दैट वी थ्रो। तो दे आर प्लेइंग वेरी केयरफुल। बहुत फूक फूक के बॉलीवुड वाले काम कर रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया पे बहुत ही केयरफुली कुछ भी डाल रहा है। सेलिब्रेशंस का तो हार्डली मुझे लगता है कि किसी ने डाला है, पादुकोण से लेके कोई भी लोग हो, रिया तो कुछ डाल ही नहीं रही है। तो आप एक चीज़ ज़रा यहाँ पे समझने का कोशिश करो, कि जब ये लोग जो सुशांत के क्लोज नहीं हैं, वो लोग डाल सकते हैं सोशल मीडिया पे, दे कैन जस्ट put anything, but they are being very cautious, they are not putting anything that will send a wrong message, ठीक है। दे आर बीइंग बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। रिया भी कुछ नहीं डाल रही है, फूक के कदम रख रही है। पर अंकिता, वाई इज शी बीइंग सो डेयरिंग और इज शी बीइंग स्टूपिड? व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या उसको पता नहीं है कि अगर वो इस तरह की फ़ोटोज़ डालेगी या वीडियोज़ डालेगी तो लोग उसको जज करेंगे? बिकॉज बिकॉज द वे वी पुट आवर, मैंने कि आप अपना वीडियोस डालो तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल डू इज जज यू व्हेन यू आर बीइंग हैप्पी। तो आई एम श्योर शी इज़ नॉट स्टूपिड दैट शी डजंट नो दैट पीपल विल जज हर, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट, जहाँ पे बाकी लोग सेफ प्ले कर रहे हैं, ये बंदी, वाई इज शी बीइंग सो सुसाइडल? वाई इज शी गोइंग आउट एंड पुटिंग ऑल दीज इंस्टाग्राम पे फोटो अपने व्यू के साथ और हर चीज़, इतना सुसाइडल चीज़ क्यों कर रही है वो? तो डेफिनेटली यहाँ पे यू हैव टू गो इनसाइड एंड नो कि ये इतना टीनेजर टाइप का बिहेवियर क्यों कर रही है। यू अंडरस्टैंड व्हेन यू, टीनेजर्स में क्या करते हैं हम लोग, आप टीनेजर्स को बोलते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि आप अगर टीनेजर को लगता है कि उसके माँ बाप उसको किसी चीज़ से दबा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, तो टीनेज बच्चा क्या करता है, वो वही चीज़ करता है, जिसको जो चीज़ उससे उसको रोको वो वही चीज़ करता है। बिकॉज एक अंदर में उसके है कि नहीं मैं करूँगा, ये लोग मुझे समझ नहीं रहे, मैं जो मन में आएगा करूँगा। तो वो समझिए कि जहाँ पे पूरी दुनिया इतना सेफ प्ले कर रही है, बॉलीवुड अपना मूवीज़ पोस्टपोन कर रही है, वही बॉलीवुड जिन्होंने सुशांत को ह्यूमिलिएट करने में दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, वहाँ पे ये बंदी आके वाई इज शी बिहेविंग एज इफ शी डजंट केयर अबाउट सुशांत? अगर कोई पॉलिटिकली करेक्ट है तो वो बंदा ये करेगा ही नहीं, दे विल बी वेरी सेफ। शी इज़ नॉट स्टूपिड दैट शी डजंट नो कि अगर वो फोटो डालेगी तो पीपल विल जज, बट मे बी शी वॉन्ट्स टू मेक इट क्लियर दैट यू कैन जज मी, आई डोंट केयर, आई हैव माई लाइफ एंड आई हैव टू लीव इट। और ये तभी होगा जब अंदर में उसके कोई चोर नहीं होगा। दिस इज माई लुक इन टू इट, ओके। तो वो सारी चीज़ें हैं। It's very simple, no? Why are other people not, why is Riya not posting things? Why is Ankita posting? Because you're not scared of being judged. और जब आप स्कैर्ड नहीं होते हो जज करने के लिए, तो इसका मतलब कि अंदर में कुछ नहीं है आपके हाइड करने के लिए। वो चीज़ है। So this is the guidance, guys. What is Sushant's last wish for Ankita, and how
what he wants to tell her. He wants to tell her that all your dreams will come true and you will have a very happy life. There may be initial problems, alignment problems with your present guy, but things will be fine. You don't have to worry. You are doing good, taking baby steps, and you will soon be able to, come in your full avatar and be confident about yourself, because you are taking those baby steps, you are working, and you will be fine. You will be able to take your chariot into the sun, where sun is you'll be able to take your chariot to the place where the sun is going to shine on your life with all the happiness that you deserve. So this is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading. If you like the reading, like, share and subscribe, and thank you so much. I'll see you again. Take care. Bye for now.